I've not posted video in like 2 weeks. I don't know what happened. बट मैं ऑलमोस्ट 2 साल से हफ्ते में 2 बार वीडियो पोस्ट कर रही हूँ. बट दिस वॉज दी लॉन्गेस्ट दैट आई वॉज नॉट अवेलेबल. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने में ज़्यादा मज़ा आने लगा था. एट वन पॉइंट आई वाज लाइक छोड़ दूँ क्या, नहीं बनाती हूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. बट देन आई नो दैट देयर इज़ माई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कम्युनिटी हु इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो एंड I have to show up for you guys. So that's exactly what I'm going to do today and day after and forever. Okay, so I will still continue to post at least 2 times a week लॉन्ग वीडियोज़. और आज जो है हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू लॉन्चेस की. लाइक आई हैव around 6-7 new launches that I'm really excited about and I'm sure आप भी बहुत ज़्यादा excited होगे. So without further ado, let's begin. Start करेंगे with a product that I used to love back in 2018-2019. So if you guys remember, स्विस ब्यूटी का एक प्रोडक्ट आता है, अभी भी आता है. इट्स कॉल्ड द रियल मेकअप बेस प्राइमर. कुछ ऐसी बॉटल आती है. इसमें 3 वेरिएंट्स होते हैं, एक गोल्ड, एक पिंक और एक नेचुरल शेड. आई यूज टू लव इट बिकॉज एवरी टाइम मैं उसको अपने फाउंडेशन के नीचे लगाती थी, मेरा मेकअप इतना ज़्यादा सुंदर लगता था. दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज बैक इन द डे, लाइक दिस इज 2018-2019 आई एम टॉकिंग अबाउट, तब ड्यूई का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. एवरीथिंग वॉज मैट. देयर वॉज नो फाउंडेशन दैट वॉज मेंट फॉर ड्राई स्किन स्पेसिफिकली. सो एवरी टाइम आई वुड वेयर दैट प्राइमर अंडरनीथ एंड उसके ऊपर जब भी मैं फाउंडेशन लगाती थी मेरा मेकअप इतना ज़्यादा सुंदर लगता था. आई वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट दैट 2018 में व्हेन पीपल डिड नॉट नो अबाउट स्विस ब्यूटी, आई वॉज द वन जिसने उस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड वायरल किया था. स्पेशली जो उसका गोल्डन वाला शेड है ना, वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बट द प्रॉब्लम विद दैट प्रोडक्ट वॉज उसमें ना ग्लिटर पार्टिकल्स थे. 2 फाउंडेशन के नीचे कुछ नहीं दिखता था, बट इफ़ यू वुड वांट टू अप्लाई इट एज अ हाईलाइटर देन वो चंकी पार्टिकल्स दिखेंगे. एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज एक्चुअली हैड प्रॉब्लम with that product. So when Mars launched their Take a Glow illuminating primer and strobe cream, so this is a primer and strobe cream. This literally took me to 2018. This is an exact dupe of that product. Now both of those products probably retail at the same price, but I cannot make out a difference. And coming from me is because I finished almost 2 bottles of that particular primer. Finishing a makeup product means कि मैं भाई उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. So when I got this, I was like so happy because this particular shade, Light Beam, is literally जो उसका golden वाला version था, it's literally the same. This is what I'm wearing today अपने BB cream के नीचे. Now I would not recommend this product to oily skin because ये काफ़ी ज़्यादा moisturizing है and it will give you that dewy effect, not just in terms of like दिखने में, but in terms of how your skin will feel. Your skin will feel moisturized, smooth and glow. So if you have normal skin or dry skin, this is the product that you should go for. However, if you have very dry skin, then तो आप इसको किसी भी फाउंडेशन के साथ में पेयर कर सकते हो. But if you have foundations sitting around, matte foundation जो कि अब आप लगाते नहीं हो because they look very cakey या फट जाते हैं आपकी स्किन पे because you have dry या normal skin, this is the product that will save your foundation. इसको लगाओ, इसके ऊपर कोई भी मैट फाउंडेशन लगाओ and you will get that skin like finish, skin like glow. कहीं से फटेगा नहीं प्रोडक्ट आपका and it will look so good, like as if कैसे बोलूँ, ग्लास स्किन फिनिश आ जाएगा. आई हैव 2 shades here. The first one is called 02 Light Beam. It is actually a yellow tinted strobe cream / moisturizing primer. This is good if you have a yellow undertone. The other one that I have is called Moon Glow and this actually has a pearl finish. So ना ही तो ये पिंक है ना ही तो ये गोल्ड है. It is for probably जिनका न्यूट्रल अंडरटोन होता है. This one works fine for me. You get 30 grams of product in this and this retails for 449 rupees. Now वो जो कंसर्न था ना कि चेहरे पे ग्लिटर पार्टिकल्स तो नहीं दिखेंगे, लाइक अगर आप इतनी दूर से किसी को देखोगे तो कोई ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, बट इट डज हैव शिमर पार्टिकल्स इन इट. स्विस ब्यूटी के कंपैरिजन में शिमर पार्टिकल का साइज छोटा है एंड अगर आप एकदम बहुत पास जाके अपनी स्किन को देखोगे तब हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिख जाए ग्लिटर पार्टिकल, बट फ्रॉम अफार इतना कुछ नहीं दिखने वाला है. सो बी रेस्ट अश्योर्ड. आई नो आई कंपेयर्ड दिस विद स्विस ब्यूटी एंड आई लव्ड स्विस ब्यूटी इवन दो उसमें विजिबल प्रॉब्लम्स थे वो चंकी पार्टिकल्स वाले, जो कि आई डिडंट माइंड. ओके, एंड इसमें उसको उन्होंने थोड़ा सा रिजॉल्व किया है बट द प्रॉब्लम हैज़ नॉट गॉन कम्प्लीटली. एंड इफ आई हैव टू रेट देम, इट्स जस्ट माई बायस एंड आई वुड गिव दीज लाइक a 9 on 10. आई लव दिस प्रोडक्ट 2 bits because the way my base looks after using this is crazy.
Maybelline has a new launch. They have recently launched their BB cream and surprisingly ये थोड़ा अफोर्डेबल साइड पे है. I've seen recently Maybelline जो कुछ भी लॉन्च कर रहा है ना वो ऐसे 700-800 ऐसी वाली रेंज में है. So launching this at under 400 rupees was a little shocking because you don't expect something like this from Maybelline. Okay, this is Maybelline Fit Me BB cream, BB nude cream with SPF 50 glow BB cream. Okay, so I got 2 shades because मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा शेड कौन सा होने वाला है. The shades that I got is 30 and 40. 30 थोड़ा सा गोल्डन अंडरटोन में है एंड इट इज़ फॉर फेयर स्किन टोन्स. लाइक अगर आप मुझसे फेयर हो देन यू कैन गो फॉर 30 एंड अगर आप मेरे स्किन टोन के हो देन गो फॉर 40. अगर आप स्क्रीन पे अभी देखोगे आई स्वॉच बोथ ऑफ दीज साइड बाय साइड. दिस वन इज लुकिंग अ लिटिल लाइटर एंड ब्लेंड करने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रही थी एंड इनफैक्ट थोड़ा सा ग्रे भी पड़ गई थी मेरे स्किन पे. दिस ऑन द अदर हैंड, ओ माई गॉड, इट लिटरली वॉज लुकिंग लाइक माई स्किन. इससे ज़्यादा अच्छा मैच हो ही नहीं सकता. आई इवन आस्क्ड अंशिका कि यू नो यू कैन यू मेक आउट कि मेरे फेस पे कुछ है एंड शी सेड नो, ऐसा लग रहा है आपका ही स्किन है. दिस पर्टिकुलर शेड लुक्ड सो गुड ऑन मी. दिस वन I usually go for something that has a hint of yellow in it. This one on the other hand felt a little neutral and I felt ये ना थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीडाइज हो रही हैं. So even though this was like a good match for me, मुझे ना इन दोनों को मिक्स करके ही यूज़ करना पड़ा because using just this it actually made my complexion go a little darker because थोड़े टाइम के बाद ये ऑक्सीडाइज हो रहे थे. So mixing both of these, this is how my face looks. Now in real life it's a perfect match इन दोनों को मिक्स करने के बाद. But if I look at the camera, I mean you can see my face is looking lighter as compared to my neck. That is because I feel इसमें SPF है and there is a flashback and उसकी वजह से you can see this particular difference because lights है. But when I'm looking in the camera, there is literally no difference in my cheek and my neck. So yeah, you just keep that in mind. You get 25 ml and this retails for 425 rupees. But you know under 400 आपको आसानी से मिल जाएगा. In fact, I got it from Nykaa at around 386 or 390 rupees. One thing I would like to mention is this is actually pretty dewy. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है you might want to powder your skin. Otherwise आपकी स्किन जो है काफ़ी जल्दी ऑयली लगने लग जाएगी. For normal to dry skin you will love the formulation. But I don't know, इतनी गर्मी में ड्यूई फिनिश वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, आई मीन सॉफ्ट मैट फिनिश वर्क्स बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब तो, बट ड्यूई फिनिश में इवन इफ़ यू हैव नॉर्मल और ड्राई स्किन थोड़ा सा पाउडर अगर कर लोगे तो बेटर रहेगा, बहेगा कम. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल ग्लो. लाइक लगाने के तुरंत बाद ही आप देख सकते हो माई स्किन वॉज ग्लोइंग एंड मैंने नीचे सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया था. कवरेज की अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ अ शेयर टू मीडियम बिल्डेबल कवरेज विच इज़ गुड. आप बिल्ड कर सकते हो एंड ये केकी नहीं लगेगा. एंड इनफैक्ट आप देख सकते हो मेरे आइज़ के अराउंड जो भी पिगमेंटेशन था इसने काफ़ी हद तक कवर कर दिया. इट इज़ लुकिंग अ लिटिल ग्रे बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डार्क है मेरी अंडर आइज, तो थोड़ा सा अगर मैं कलर करेक्शन कर लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा. बट इवन इफ आई वॉन्ट टू लीव इट लाइक दैट आई कैन. फॉर एवरी डे आई डोंट वॉन्ट टू डू द कलर करेक्शन, आई कैन एक्चुअली गो हैड एंड जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस एंड मेरे स्किन टोन को ये इवन आउट कर देगा. वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हियर इज दैट कि एक साइड पे मैंने इसको फिंगर से ब्लेंड किया था एंड इट ब्लेंडेड प्रिटी नाइसली, बट टाइम लगा मुझे ब्लेंड करने में. बट ऑन द साइड वेर आई यूज्ड अ ब्रश इट वॉज प्रिटी क्विक एंड आई फेल्ट मेरे को कम प्रोडक्ट भी लगा एंड काफ़ी ज़्यादा इवनली स्प्रेड आउट हुआ प्रोडक्ट. आई एम अ ब्रश पर्सन, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है, बट आई लाइक्ड हाउ इट लुक्ड व्हेन आई ब्लेंडेड दिस विद ए ब्रश रादर देन विद अ फिंगर. Also, I quickly want to talk about the SPF claim. This has SPF 50. There is no PA rating. And अगर मैंने ingredients भी देखूँ ना, I'm not pretty impressed by the UV filters they have used. So obviously you cannot use this as your sun defense. You will have to wear your sunscreen even if this has SPF 50 in it. The formula is decent, okay? I would not say it's bad. I mean, I don't want to say it's bad, but it's not the best out there as well. अगर मुझे इसको rate करना होगा ना, तो I would give this like a 7.5 or maybe an 8 out of 10. Next I have is a kajal and it's not an ordinary kajal. मैं बात कर रही हूँ इसकी. This is Simply Nam's Ultimate Kajal. Now I think I have a love-hate relationship with this particular product. It's a jumbo kajal. First of all, look at the tip of it. It's a brown kajal. इसका जो brown color है it's more towards black and less towards like a true brown shade. Like dark brown color है, तो आंखों पे जब आप लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपने black kajal ही लगाया हुआ है. This is what I've applied on my lower lash line. Now why I said I have a love-hate relationship with this is because I am not a big fan of these kinds of jumbo kajal. अभी तो जैसे इसकी टिप आपकी काफ़ी pointed है, it will go blunt and then apply करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. But these are actually very good अगर आपको eyelids पे काजल अप्लाई करना है तो काफ़ी जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू योर पतली वाली काजल स्टिक्स. नाउ आई डोंट डू दैट, तो इसलिए
मुझे इतना जंबो काजल की जरूरत नहीं पड़ती, बट इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू यूज देयर काजल ऑन देयर आईज टू गेट दैट स्मोकी इफेक्ट, देन मे बी आपको ये पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी लगेगी. दिस इज जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ प्रेफरेंस. आई डू नॉट लाइक समथिंग डजंट मीन दैट आपको भी नहीं अच्छा लगेगा. इफ यू आर समबडी जिसको चाहिए एक जंबो काजल, दिस इज अ थिंग दैट यू कैन गो फॉर. द गुड थिंग अबाउट दिस इज इसमें आपको शार्पनर मिलता है. तो हाँ, जो मैंने बोला ना कि पॉइंटेड टिप है तो बाद में ब्लंट हो जाएगी तो फिर कोई यूज़ नहीं हो उसका. एक्चुअली यू कैन शार्पन इट अप, बट आई हैव प्रॉब्लम विथ शार्पनिंग यू नो सिर्फ प्रोडक्ट को, बिकॉज प्रोडक्ट इसमें लग जाता है एंड इट बिकम्स मेसी. सो देर आर लॉजिस्टिकल इशूज़ विद द प्रोडक्ट. मैं अगर अच्छे शब्दों में कहना चाहूँ तो इट ऑल्सो कम्स विद अ स्मजर विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सॉफ्ट. इट्स नॉट हार्ड एट ऑल. इट इज़ एक्चुअली प्रीटी कन्वीनियंट टू स्मज योर काजल विद दिस. आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट बिकॉज इस प्रोडक्ट में है ही एंड यू आर समबडी हु लाइक्स टू वेयर दिस काइंड ऑफ काजल, ऐसे थोड़ा सा स्मज लुक, एक ही पेन में आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है. सो यू वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस. ऑल्सो दिस इज एक्चुअली अ ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला, बट आई डिड नॉट लाइक दैट. ये ना कैसे बोलूँ मैं, जैसे कुछ फॉर्मुलेशंस होती है क्रम्बली हो जाती है ना. सो इट्स अ स्मूथ फॉर्मुलेशन बट इट फील्स अ लिटिल टू मच लाइक बहुत सारा प्रोडक्ट एक बार में आपके स्किन पे आ रहा है एंड देन समटाइम्स, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सॉफ्ट. लाइक दिस प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सॉफ्ट. तो टिप के टूटने का भी डर मुझे लग रहा था. इसका नाम वैसे इंटेंस ब्राउन है, सो आई अंडरस्टैंड दैट दे वांट टू कीप इट लाइक रियली डार्क ब्राउन, बट इसमें ना ब्राउन की जगह पर मुझे थोड़ा सा ग्रे के हिंट्स आ रहे हैं rather than like a dark brown color. You know, the brown is not coming through this. I might be nitpicking with this product, but then you know थोड़ा सा expensive है तो इसलिए I like to do that with expensive products. जब मैं पैसे पे करती हूँ तो I want my product to deliver in all aspects. Just that I feel the product itself is too soft, तो you will have to keep it in cool and dry places. अगर आपने थोड़ा भी इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो हो सकता है कि प्रोडक्ट अपने आप में मेल्ट हो जाए, या फिर आप जब अप्लाई कर रहे हो अपने वाटर लाइन में तो ज़्यादा प्रोडक्ट निकल आए बिकॉज सॉफ्ट हो गया है. ओके, इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ, बट अगर आपने मॉइस्चराइज़र या फिर यू नो अंडर आइज पे कुछ लगाया हुआ है देन वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं रहेगा, बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आते साथ ही वो अपनी वो ट्रांसफर प्रूफनेस जो है वो खो देता है. सो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइज़र ऑन माई हैंड इसको अप्लाई करने से पहले, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एक्चुअली कमिंग ऑफ प्रिटी ईजली. तो हो सकता है कि ये ब्लीड भी कर जाए. काजल मस्कारा मेरी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा देर लास्ट करते हैं एंड ब्लीड भी नहीं करते, बट इफ़ यू आर समबडी जो काजल हर रोज़ में अप्लाई करना पसंद करते हैं, यू नो यू टेंड टू रब योर आईज ऑल्सो, दिस माइट जस्ट गो एवरीवेयर बिकॉज एज यू कैन सी इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ, बट विद मॉइस्चराइज़र और मे बी अगर आपकी ऑयली आईलिड्स हैं this might bleed. Okay, overall अगर मुझे इसको रेट करना होगा I will give this a 7 on 10. It's not a bad product. It is something that I might not need, but you might. Okay, so just pros and cons या what you want उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए make your decision. Okay, next I have is a makeup setting spray and it's from Inside Pro, and oh my god, this is such an amazing product. I was not expecting this. First of all, look at the spray. I love the spray and fragrance भी मुझे ठीक ही लग रही है. हल्की सी अल्कोहल की फ्रेग्रेंस तो आएगी because it is a setting spray. This is also infused with aloe vera and hazel extract, and ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है. I loved how it set my makeup. जो भी पाउडरीनेस थी ना वो सारी की सारी चली गई because I applied a lot of powder right before using this, and my skin looked really nice and glowy. As you can see, I do not have a highlighter on my face, so I'm just going to apply some eyeshadows. Okay, so I'm just taking 2 of these eyeshadows अपने back of the hand पे. Okay, and we'll just apply some of this. सूखने देते हैं तब तक. we'll move on to the next product. I have a few lipsticks you guys, and 2 of them are from Blue Heaven. Actually Instagram पे मैंने बहुत सारे लोगों को इन लिपस्टिक्स के रिव्यू करते हुए देखे. I know some of them are paid collaborations, but पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी तो I thought why not try these. तो पहला है ये Love Capsule Non Transfer Lip Color, and the shade that I got for me is Bear It. It's a beautiful terracotta color. You can see it on the screen. Actually काफ़ी अच्छा लग रहा है. If you are fair skin tone से मेरे skin tone तक के हो, this will look good on you. अगर आपका पिंक अंडरटोन है
है देन मे बी यू वुड नॉट वांट टू बाय दिस बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज लगेगा आपके ऊपर. बट अगर आप येलो अंडरटोन में हो, न्यूट्रल अंडरटोन में हो, यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई. द अदर शेड दैट आई गॉट इज कॉल्ड cinnamon sugar and this one is in their powder matte formulation. This is how it looks like. It's actually a powder matte formulation and the shade is actually very pretty. It's a pinky brown shade. जब मैंने इसका पहला स्वॉच किया तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई, but you know when I applied it all over my lips I was like it is actually a very good shade. I mean I am not a big fan of pink lipsticks but this one was actually looking good on me and ये काफ़ी ज़्यादा inexpensive भी हैं. The bullet lipstick is for 199 rupees and you get 4 grams of product in it and the liquid lipstick is also for 199 rupees and you get 5 ml product in this. The packaging is cute, however ऐसे खड़ा करके नहीं रख सकते आप and you have to you know put it in the drawer or something like that. ये वाली जो liquid lipstick है ये भी बिल्कुल नॉन ड्राइंग थी. however मैंने लिप बाम लगाया हुआ था बट लिप बाम मैंने मेकअप करने से पहले लगाया था, उसके बाद लास्ट तक आते आते लिप बाम एक्चुअली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. सो जब मैंने इसको लगाया उसके ऊपर इट एक्चुअली बिकेम नॉन ट्रांसफर. आप देख सकते हो कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा एंड इट वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स एज वेल. दिस ऑन द अदर हैंड इज नॉट नॉन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होगी बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन. आई मीन इट्स अ क्रीम लिपस्टिक सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि लिक्विड लिपस्टिक जितनी लास्टिंग पावर नहीं होगी इसकी बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करेगी एंड 4 to 5 आवर्स आराम से कर जाएगी. और जो लास्ट लिपस्टिक है विच आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरे से ऑलरेडी कमेंट में पूछ चुके होंगे व्हाट्स ऑन माय लिप्स इज दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये है इनसाइट की क्रेम कंफर्ट लिपस्टिक, हाइड्रेट, शाइन एंड डिफाइन. So this is how it looks like. This retails for 330 rupees. Now I get it because the packaging is so luxe. Just look at the packaging, कितनी ज़्यादा सुंदर है. The shade that I have is Sin and Silk and it's a beautiful neutral brown color. Like it's actually a warm tone brown color but I love these kinds of colors on me. What do you think? And इसका अगर मैं texture बोलूँ तो it is actually a Hydra lipstick but it is a very good Hydra lipstick. आई थिंक मैंने जितनी भी हाइड्रो लिपस्टिक ट्राई करी है उसमें से सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये है. इट हैज़ अ शेयर कवरेज तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपने लिप्स पे बट बिल्कुल भी गूपी या गुई नहीं होगी ये. वेरी वेरी हाइड्रेटिंग ऑन द लिप्स. यू विल हैव टू रीअप्लाई दिस एट अराउंड 3 to 4 आवर्स बिकॉज थोड़े टाइम के बाद हाइड्रा लिपस्टिक अपने आप ही फेड होने लग जाती है. आई मीन दिस actually you can say Hydra lipstick are kind of tinted lip balms only. So yes, you can reapply every 3-4 hours to just you know color भी add कर देगा और hydration भी वापस से add कर देगा. Overall I think for 330 rupees it is a pretty decent lipstick. That packaging भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. हाँ खड़ा करके इसको भी नहीं आप रख पाओगे. I would rate this like a 9 on 10. अगर आप Hydra lipstick लेना चाहते हो like you like that kind of lipsticks, hydrating, creamy and glossy, then this is the formulation you would love. If I have to rate this liquid lipstick from Blue Heaven, it is actually a good 8 on 10 because काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, नॉन ट्रांसफर है एंड द कलर वॉज ओके लाइक I would say I like the color on me but I did not love it. Okay, if I have to rate this bullet lipstick from Blue Heaven I will give this like an 8 on 10 because the formula is really nice. It's very very comfortable and काफ़ी ज़्यादा long lasting भी है. So that was the last product that I recently tried. What do you want me to try next? Let me know in the comments. Also if you want to try anything from this particular video do give Mars का जो ये glow illuminator है, take a glow illuminator and primer, इसको try कर सकते हो especially if you have dry skin and if you have a lot of matte foundation lying around. The lipsticks all 3 of them were good. You can try those as well. BB cream अगर आपके पास ऑलरेडी कोई tinted sunscreen है या फिर skin tint है then BB cream अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है. You can skip these. ऐसा कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मुलेशन नहीं है. ओके सो ओ बाय द वे सुपर लॉक ये मेकअप सेटिंग स्प्रे आई लव दिस एक्चुअली. वो हमने ये भी नहीं किया ना. इट इज़ एक्चुअली प्रिटी ओह नाइस. मेकअप नॉन ट्रांसफ़र हो गया है, हल्का सा ट्रांसफर हो रहा है बट फिर भी अच्छे से सेट कर दिया इसने मेकअप को विच इज़ ग्रेट. दिस रिटेल्स फॉर 449 rupees but the packaging it's so cute isn't it? I mean you can give this one a try also if you're looking for something that will not dry out your skin, especially if you have dry skin. Yes, if you have dry skin इसको ज़रूर ट्राई करना because बहुत सारे मेकअप फिक्सर्स ना स्किन को ऐसे टाइट कर देते हैं एंड ड्यूई नहीं रखते हैं एंड मेकअप बहुत ज़्यादा मैट लगने लगता है. ये आपके मेकअप से पाउडरीनेस को भी हटाएगा एंड मेकअप को ऐसे ड्यूई सा भी लुक देगा. सो इफ यू हैव ड्राई skin then you can try this one out but if you have very oily skin then maybe you can skip this. and अगर इसमें से किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो प्रोडक्ट्स टैग में भी टैग कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है. so check it out and I'll see you guys very very soon. Till then take care. Bye.